آپ سے ہم کلام ہونا، اس میں میری ذات انوالو نہیں ہے. میں اپنی ذات سے نکل کے پاکستان اور اسلام کے لیے یہاں پہ آیا ہوں. کب تک آخر یہ چیزیں برداشت کی جا سکتی ہیں؟ کبھی یہاں پہ آقا کریم کے عاشقوں کو پھانسی پہ چڑھایا جاتا ہے، کبھی پاکستان کے اندر یہ حکومت عجیب عجیب بربادیاں لاتی ہیں، کبھی اوتھ میں میرے آقا کی شان میں گستاخی کرنے کی سازش کی جاتی ہے، کبھی ہندوستان سے دوستیوں کی بات ہوتی ہے، کبھی مودی کو یہاں پہ بلایا جاتا ہے. ایک عجیب تماشا ہے کہ ایک عالمی کافرانہ نظام کی ایک سازش کہ جس کے تحت پاکستان کو کمزور کیا جا رہا ہے. آج پاکستان ایک بڑے سینسٹیو فیز سے گزر رہا ہے، اور آج عالمی کافرانہ نظام پاکستان کے اداروں کو کمزور کر کے پاکستان کو برباد ڈسٹرائے کرنا چاہ رہا ہے. لیکن ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلم، ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتے، کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے. میری سب سے پہلی اور آخری پرائورٹی اسلام اور پاکستان ہے. میں کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ جس شخص کو 3 مرتبہ پاکستان کا پرائم منسٹر بنایا جائے اور پھر کسی سٹیج پہ پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنے کی بات کرے. پاکستان کی کمزوری کی، مودی کی دوستی میں عالمی کافرانہ نظام کی ایک سازش کے تحت اس پاکستان کو برباد کرنے کی بات کی جائے. کم از کم میں ایز میو راجپوت ہوں، اور یہ ایک مارشل قوم ہے پاکستان کے، جو انڈیا کے سے ہم مائگریٹ ہو کے یہاں پہ آئے ہیں. ہم نے اپنا رول ادا کیا، میرے بزرگوں نے پاکستان بنانے کے لیے. اس ملک کی بنیاد میرے بزرگوں کا خون ہے. میں آن ریکارڈ یہاں پہ آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میو قوم کا ایک گھر بھی ایسا نہیں ہے جس گھر کے اندر سے پاکستان کی بنیادوں میں خون نہ بھرا گیا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میری جماعت سے ہٹ کے پاکستان کو، اسلام کو میری ضرورت تھی. میں نے آج اپنی موسٹلی میری جو برادری ہے وہ میرے ساتھ کھڑی ہے، میرے دوست میرے ساتھ کھڑے ہیں. پوری پاکستان کے اندر میری جو میو قوم ہے، میں انہیں بھی یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آئیں. آج جس طرح ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا، آج پاکستان، اللہ کی قسم پاکستان بچانے کی بات ہے. یہاں پہ کون سا معیار ہے، کون سا لیول ہے، کون سی جمہوریت ہے؟ جمہوریت کے اندر ڈاروں کو مضبوط کرنے کی بات ہوتی ہے. یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں اداروں کو برباد کرنے کی بات کی جائے؟ جمہوریت، ڈیموکریسی از دا ڈیموکریسی، نتھنگ ایلس. اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی. انفارچونیٹلی جو میں دیکھتا رہا ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے ایم پی اے، ایز اے منسٹر، پاکستان کے اندر کنٹرول ڈیموکریسی ہے، اور کنٹرول ڈیموکریسی ڈکٹیٹرشپ کا دوسرا نام ہے. آخر کب تک اس کو برداشت کرتے؟ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے. اور کچھ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرا ٹکٹ کا مسئلہ ہے، ٹکٹ کا معاملہ ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، اور جو مجھے سن رہے ہیں، ٹکٹ تو مجھے 2013 میں بھی نہیں دیا گیا تھا. میں جماعت کے ساتھ کھڑا رہا کہ شاید یہ پاکستان میں بہتری لائیں گے، لیکن پھر مودی کی آمد و رفت شروع ہو گئی، پھر بربادی شروع ہو گئی، پھر اداروں کے خلاف سازشیں شروع کر دی گئیں، پھر کرپشن کی کہانیاں گھڑی گئیں. میرے ملک کے اداروں کو بیوروکریسی سے لے کے ہر ادارے کو انہوں نے برباد کیا ہے. بیوروکریسی کے اندر آپ نے دیکھا نہیں، آپ اس چیز کے گواہ ہیں، جونیئر آفیسرز کو سینئر سیٹوں پہ بٹھایا گیا اور سینئرز کی تذلیل کی گئی. میں نے دبے لفظوں میں ایز منسٹر، چیف منسٹر پنجاب کو کہا، چیف منسٹر صاحب، ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر ڈیموکریٹک فورسز کا اپر ہینڈ ہوتا ہے، بیوروکریٹک فورسز کا اپر ہینڈ نہیں ہوتا. اس وقت انفارچونیٹلی بیوروکریٹک فورسز کا اپر ہینڈ ہے، which is totally wrong. کنٹرول ڈیموکریسی کے میں اگینسٹ ہوں، میں پاکستان کے ساتھ ہوں. پھر معیار کیا ہے؟ میں نے سمجھا، میں بورڈ میں ان کے وہاں پہ گیا اور میں نے کہا کہ پاکستان بڑے سینسٹیو فیز سے گزر رہا ہے. نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، غلط فیصلے نہ کرنا، پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. آپ کا خاندان بھی سینسٹیو فیز سے گزر رہا ہے. دس از دی پراپر ٹائم. اپنی امیج بلڈنگ کریں ایز اے لیڈر، ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلم. آپ کا امیج خراب کیا گیا ہے. انفارچونیٹلی پھر کیا ہوا؟
टिकटों की खरीदो फरोख्त हुई, बर्बादी हुई, गूंगे बहरों को असम्बलियों में भेजा गया। जो हमारे आज परवेज मुशर्रफ के अगेंस्ट जो लोग खड़े थे, मैं अपनी साबका क़यादत से पूछना चाहता हूं, उनमें से कितने लोग आपके साथ खड़े हैं? क्या मारवी मेमन आपके साथ थी? क्या ये दानियाल अजीज जैसे लोग और तलाल चौधरी जैसे लोग परवेज मुशर्रफ की पूरी कैबिनेट को आपने अकोमोडेट किया, आपने उन्हें वजीर बना दिया? व्हाट नॉनसेंस! ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना रोल अदा किया है पाकिस्तान के लिए, अपने इदारों के लिए। मैं पाकिस्तान के जो 5th जनरेशन वॉर है, जो आलमी काफराना निज़ाम पाकिस्तान के खिलाफ जो मैनेज हो चुके हैं, कि उस साजिश के तहत पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करने की बात की जा रही है। ऐसा कभी नहीं होगा। पाकिस्तानी कौम कभी ऐसा नहीं होने देगी, इसलिए कि मेरी माँ, बहन, बीवी और बेटी के सर पे अगर दुपट्टा महफूज है, आपके कैमरे अल्लाह की कसम पाकिस्तान की वजह से महफूज हैं। अगर ये इस पाकिस्तान की बहुत बड़ी कीमत हमारे बुजुर्गों ने चुकाई है। 5th जनरेशन वॉर जो आलमी काफराना निज़ाम शुरू कर चुका है, जिसके तहत इदारों को कमज़ोर किया जाता है, इदारों से दस्तो गिरेबा होना कहीं पाकिस्तान दोस्ती है। मैं कभी भी ऐसी लीडरशिप के साथ नहीं खड़ा हो सकता जो मेरे मुल्क के इदारों को कमज़ोर करे, पाकिस्तान को कमज़ोर करे, पाकिस्तान के दुश्मनों से दोस्ती रखे। मेरे जैसा शख्स जो करीम आका के गुलाम होने का दावेदार है, मैं कभी भी नहीं खड़ा हो सकता। और मुझसे पहले एक हमारे भाई ज़हीम कादरी ने बात की कि हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ, पाकिस्तान, लाहौर किसकी मलकियत है? लाहौर किसी के बाप की मलकियत नहीं। मैं आज ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान किसी की मलकियत नहीं है। पाकिस्तान किसी शरीफ खानदान के बंदे की मलकियत नहीं है। अगर पाकिस्तान की ऑनरशिप की बात होगी तो फिर मेयो कौम का नाम आएगा। हमारे मेयो कौम का रिगार्डिंग पाकिस्तान हमारी ऑनरशिप इस्टेब्लिश है कि मेरे बुजुर्गों ने इस मुल्क की बुनियादों में अपना खून भरा। क्या इसलिए भरा था कि पाकिस्तान की पाक असम्बलियों में लैंड माफिया, करप्ट, क्रिमिनल, डेस्परेट लोगों को ले जाके बिठाया जाए? मैंने अल्लाह की कसम, मैंने इनसे टिकट मांगी ही नहीं, मैंने नॉमिनेशन पेपर फाइल ही नहीं किए। बोर्ड में जाने के लिए एक एप्लीकेशन दी थी ताकि मैं आखिरी अतमाम हुज्जत के लिए आखिरी बात कर सकूं। मैंने वहां भी अपनी बात की है ना, मैंने 13 में मैंने अवॉइड किया। मैंने आज भी कहीं किसी हल्के में मेरे नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं है। मेरा मसला MPA MNA वजीर होना नहीं है। पाकिस्तान डोंट नीड द MPA MNA चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान नीड अ स्टेट्समैन। एक स्टेट्समैन चाहिए मेरे इस मुल्क को। आज हमारी जिम्मेदारी है, इस मुल्क को जो आग लगी है उसको हम अपना अपना रोल अदा करें, उस आग को बुझाएं, और कम से कम जिस दिन तारीख लिखने वाला तारीख लिखे, हमारा नाम इस मुल्क की आग बुझाने वालों में आए, आग लगाने वालों। शामिल करेंगे हेडलाइंस। आम इंतखाबात के लिए लाहौर का मार्का, PTI और नून लीग में कांटे के मुकाबले। कौमी असम्बली के 14 हलकों में तहरीक इंसाफ और लीगी उम्मीदवार आमने सामने हो गए। सबसे बड़ा मुकाबला। रात के अंधेरे में उस वक्त अपने सीने पे गोली खाते हैं कि इनकी नींद खराब ना हो, कि पाकिस्तानी आराम की नींद सोएं। कितनी शहादतें हैं, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, हमें उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। आज पाकिस्तान अपनी मंजिल के करीब है, लेकिन मैं समझता हूं कोई भी करप्ट, कोई भी क्रिमिनल क़यादत पाकिस्तान को उसकी मंजिल पे नहीं ले जा सकती। आज पाकिस्तान को जकड़ दिया कर्जों में, तमाशा बन गया इस मुल्क की तकदीर के साथ। इस कौम के बच्चे भूख से मर रहे हैं। माएं जहर दे दें बच्चों को कि खाने को रोटी नहीं है, पाँव में जूती नहीं है और किताबों के पैसे नहीं हैं। माँ बाप अपने बच्चे खुदकशी कर लें और इस कौम के हुक्मरान बर्बादी उतारें, लूटें इस मुल्क को, इसके इदारों को, क्रिमिनल्स को साथ खड़ा करें, डेस्परेट लोगों के साथ खड़े हों। कम से कम मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मेरी पूरी मेयो कौम, मेरे दोस्त, पूरी पाकिस्तानी कौम, आज कौमी इत्तेहाद की जरूरत है। हम रोकेंगे इनका रास्ता जो मोदी के दोस्त हैं, हम रोकेंगे इनका रास्ता जो आलमी काफराना निजाम से मिलके
5th जनरेशन वॉर का हिस्सा बनते हैं। हम ये कभी नहीं होने देंगे। हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के इदारों के साथ हैं, पाकिस्तान के उस बच्चों के साथ हैं उनके जिनके नंगे पांव जख्मी हैं, और कभी भी हम ऐसा नहीं होने देंगे कि कोई शख्स पाकिस्तान की तकदीर से खेले। मैंने बहुत कुर्बानियां दी हैं। परवेज मुशर्रफ के टाइम पे कोई माई का लाल निकलने को तैयार नहीं था, आप इसके भी गवाह हैं। हमने उस वक्त भी कुर्बानी दी, तहरीक निजात में मैंने कुर्बानी दी, उसके बाद भी आज भी। ये सबसे बड़ी मेरी एक अहम टर्निंग पॉइंट है कि मैं सदी का ऑलमोस्ट आधा हिस्सा 28 ईयर्स गुजार के पाकिस्तान की मोहब्बत में, इस्लाम की मोहब्बत में, अपने आका की मोहब्बत में सब कुछ छोड़ के और पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ। बाकी उम्र का हिस्सा पाकिस्तान के लिए गुजरेगा, पाकिस्तान के लिए गुजारेंगे और पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। मेरे दोस्तों और भाइयों, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि मैं आपने मुझे यहाँ पे सुना, और मैं ज़रूरी समझता था कि मैं अपना दिल खोल के आपके सामने रखूँ। मैं अल्लाह की कसम मुस्लिम लीग उस दिन छोड़ना चाह रहा था जिस दिन मॉडल टाउन के अंदर एक औरत को जो कह रही थी मेरे पेट में बच्चा है मुझे मत मारो, और उसके मुंह के अंदर गोली मारी गई। मैं मुस्लिम लीग को उस वक्त छोड़ना चाह रहा था जब कादरी साहब को फांसी पे चढ़ाया गया। मैं कब तक देखता, कब तक सोचता, और फिर इन्होंने मेरे आका की शान में गुस्ताखी की। आलमी काफराना निज़ाम से मिलके इन्होंने ओथ के अंदर तब्दीली लेके आए। मैं कल को अल्लाह के हुजूर क्या जवाब देता? मैं पाकिस्तान के साथ हूँ, एंड लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ हूँ। आपके लिए मेरी जान, तन, मन, धन, मेरी नस्लें, पाकिस्तानी कौम आपके नाम पे कुर्बान। हम ऐसा पाकिस्तान में कभी नहीं होने देंगे। छोड़ दिया है और आखिर में आपने तहरीके लब्बैक या रसूल अल्लाह का भी नारा लगाया, तो क्या आप वहां जाएंगे? मैंने तहरीक नहीं कहा, मैंने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं आपका कमी आपके लिए हाजिर हूँ। मैं आपको अर्ज करता हूँ, नहीं वो तो मैं सुन लें। मैं पीटीडीसी में जब तक काम करता रहा हूँ, आपको ये सुन के खुशी होगी कि मैं पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हूँ, एज ऑनरेरी असाइनमेंट काम कर रहा हूँ। मैं कोई, सुन ले मुझे, मैं कोई टीएडीए नहीं ले रहा, मैं कोई सैलरी नहीं ले रहा। मैंने अपने ख़ानदान का अपना वक्त पाकिस्तान के लिए दिया है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ, उस पर अलहदा ब्रीफिंग देने को तैयार हूँ कि पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो एक डिवॉल्व इदारा है, मैंने उसकी ऑनरशिप को अल्लाह के फजल से बहाल कराया है। मैंने काम किया है। मोदी का यार भी किसी के वोटों से प्राइम मिनिस्टर बना था, ये सोच लें ख्वाजा साहब। मैंने पार्टी को जिंदा रखा इनकी गैर मौजूदगी में। चौधरी गफूर ही था जब इनके वालिद मोहतरम की डेड बॉडी आ रही थी, आप इसके गवाह हैं। कोई बंदा आगे नहीं आ रहा था, कोई इनके चहेते जो इधर उधर हैं, रात के अंधेरे में फौज से मिले हुए थे। मैं और मेरे वालिद ही थे जो इनके वालिद मोहतरम की कब्र बना रहे थे। मैंने उस वक्त भी कुर्बानियां दी हैं। मेरे खून में वफा है, कुर्बानी का जज्बा है। और आज आपने ये नया इंकशाफ किया कि कौन फौज के साथ मिला होता है रात के अंधेरे में। दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपने बोर्ड में एप्लीकेशन क्यों दी जब आपको पता था आपने टिकट नहीं लेनी, जब आपने इलेक्शन नहीं लड़ा, तो आपने क्यों अप्लाई? मैं ये भी शेयर करूं, मैं अतमाम हुज्जत के लिए मैंने बोर्ड में जाके, ऑन रिकॉर्ड है, टेप निकलवा लें। और वहाँ पे कुछ मीडिया के लोग मौजूद थे। मैंने कहा नवाज शरीफ साहब, मैं सिर्फ यहाँ ये कहने आया हूँ कि पाकिस्तान सेंसिटिव फेज से गुजर रहा है, शरीफ खानदान सेंसिटिव फेज से गुजर रहा है। लैंड माफिया, क्रिमिनल, करप्ट लोगों को टिकटें ना देना। मैंने अगर टिकट लेना होता, कम से कम मैं जाके नॉमिनेशन पेपर तो कहीं फाइल करता, मैं कहीं नॉमिनेशन पेपर तो फाइल करता। शरीफ खानदान से हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं कि मैं उनको बताने गया था, और दूसरी तरफ आप इस बात का ऐलान कर रहे हैं। मेरे आका की हदीस है कि आप मदद करें अपने भाई की, चाहे वो जालिम ही क्यों ना हो। तो जालिम को जुल्म से बाज रखना उसकी मदद है। मैंने आका की सुन्नत पे अमल करके रोका है। ये जालिम है,
इन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है, पाकिस्तान के इदारों को बर्बाद किया है। और तारीख लिखने वाला जब तारीख लिखेगा ना, फिर लिखना पड़ेगा कौन कौन गूंगे बहरे क्रिमिनल करप्ट लोगों को असेंबलियों में भेज दिया जाए और फिर ये क्लेम किया जाए कि आई एम सादिक और अमीन। हाउ इज इट पॉसिबल? ये परवेज मुशर्रफ के टाइम पे, एक सेकंड मुझे जवाब, फिर मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। परवेज मुशर्रफ के टाइम पे आज जो लोग इनके साथ खड़े हैं, दिन के अंधेरे में भी जो मुशर्रफ के साथ थे वो भी इनके वजीर हैं, जो रात के अंधेरे में परवेज मुशर्रफ को मिलते थे। शरीफ खानदान का कोई ना कोई शख्स उस वक्त भी परवेज मुशर्रफ को मिलता था। अनफॉर्चुनेटली ये ज़रूर गिला करते हैं, परवेज मुशर्रफ ने हमारी हुकूमत ख़त्म की, मुल्क पे कब्ज़ा किया और हमें मुल्क से जलावतन किया। आज तक कौम ने एक सवाल नहीं किया इनसे कि परवेज मुशर्रफ को लेके कौन आया था, किस लिए लेके आए थे, कौन सी वो वजह थी कि आपने चेन ऑफ कमांड को तोड़ा, आपने बीच में से जर्नल्स को फारिग करके और परवेज मुशर्रफ को लेके आए। आपका बहुत शुक्रिया। मैंने नॉमिनेशन पेपर ही फाइल नहीं किए, मैं हर हलके में जाके क्रिमिनल करप्ट लोगों की, जिन फजूल लोगों को इन्होंने टिकट दिए हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ का हलका ही क्यों ना हो, मैंने कल पहला जलसा शहबाज शरीफ के अगेंस्ट, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं कर आया हूँ। मैं शहबाज शरीफ के इलेक्शन में जाऊँगा, हमजा के इलेक्शन में जाऊँगा, इन सब के इलेक्शंस में जाऊँगा और कम अज़ कम बेनकाब करूँगा कि रात दिने असी कोशिश की थी, बख्त जिदे सवारन लई, ओहो ही बुक्कड़ विच लुकाई फिर दे, पत्थर इस मुल्क नू मारन लई। मैं बताऊंगा हकीकत क्या है कि जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कनें, जब उनको जुबान मिली तो हम ही पे बरस पड़े। अब आप लीग के साथ थे, उसकी क़यादत के अंडर काम कर रहे थे, आप डीडीसीबी के चेयरमैन थे, आपके पास भी मौके हैं, आप उसको एंजॉय कर चुके हैं, आपके पास सारी लेविशनेस है। अब आप कह रहे हैं कि मैं नून लीग को जो है उनका कच्चा चट्टा है वो खोलना चाह रहा हूँ। जो सर मुझे ये बताएं, आपको इससे पहले कभी याद नहीं आया, आप मोदी के आने के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे हमेशा याद आता रहा। मैं अपनी क़यादत में जमात के अंदर हमेशा मैं इजहार करता रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर हुआ क्या, होता क्या रहा, आपने भी वो देखा कि मैं पर्वतों से लड़ता रहा और कुछ लोग गीली मिट्टी खोद कर फरहाद बन गए। ये कहां से आए थे, कौन थे जो नवाज शरीफ के स्पोक्समैन थे, क्या रोल था मुस्लिम लीग के लिए, मुझे कोई बता सकता है क्या रोल अदा किया इन्होंने? आप इसके गवाह हैं कि परवेज मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट कौन खड़ा रहा, आप इस चीज़ के गवाह हैं कि मैंने 13 का इलेक्शन, अपना इलेक्शन छोड़ के मोहम्मद नवाज शरीफ का इलेक्शन लड़ा। मैं कोई सियासी ठिकाना अभी नहीं है, मैं आई विल बी कंटिन्यू एज पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, एज करीम आका के गुलाम के, मैं पाकिस्तान के लिए अपना रोल अदा करूंगा इंशाअल्लाह। कोई रिटायरमेंट नहीं है। अब मैं तो कहता हूं, मैं ये कहूंगा, मुझे कहने की इजाज़त भी दें आप, गुजरात के मुसलमानों का खून जिसके हाथ और मुंह पे है, जिसके हाथ आलूदा हैं मुस्लिम्स के खून से, उसको अगर कोई अपने पास बिठाता है तो उम्मत मुस्लिमा का गद्दार है। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि वहां पे खुशामदी, अल्लाह की कसम मैं एज मिनिस्टर भी बोलता था, मैं बोलता था उस वक्त भी, मैं जिंदा आदमी हूँ। याद रखें, कुछ लोग 20-25 साल की उम्र में मर जाते हैं और उन्हें दफन 60, 70, 80 साल में किया जाता है। उन लोगों की तादाद ज़्यादा है, मैं उन लोगों में से नहीं था। मैं उस वक्त भी बात करता था, विद इन पार्टी, विद इन जमात, मैं अपने ख्यालात का इजहार हमेशा करता रहा और इंशाअल्लाह करता रहूँगा। मेरी ज़्यादा उम्र गुजर गई है, जितनी बाकी है पाकिस्तान के लिए मैंने अपना रोल अदा करना है। मैं पाकिस्तान के साथ हूँ,
पाकिस्तान के इदारों के साथ हूं। किसी को जरूरत ही नहीं है मुझे मना ले, मैं वन साइडेड हूं कि दोरंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा, सरासर मोम हो जा या फिर संग हो जा। मुझे 28 साल मेरे पास किसी को आने की जरूरत नहीं हुई, किसी को जरूरत नहीं हुई कि मेरे पास आए। सबको पता था, सब जमातों को पता था कि ये हटेगा नहीं। अब भी सबको पता होना चाहिए। इन्होंने मेरी मोहब्बत देखी है, मेरी मोहब्बत देखी है अपने ख़ानदान के लिए, अब मेरी मोहब्बत देखेंगे इस्लाम और पाकिस्तान के लिए। इंशाअल्लाह अपना रोल अदा करूंगा, अपने हिस्से की एक शमा रोशन करूंगा। पहले आप इनसे पूछ लें, जब ये इनकार करें मैं जाके बताऊंगा कि कौन मिलता था एग्जाइल के दिनों में भी, कौन मिलता था मैं बताऊंगा। ये बात दुरुस्त है। जब मियां साहब, बड़े मियां साहब की डेड बॉडी आई, मैं और मेरे वालिद कब्र बना रहे थे। इनके एक मैनेजर ने कहा कब्र की लंबाई छोटी है, मैं उसमें फिर लेटा कि नहीं ये लंबाई पूरी है, मुझे उनकी हाइट का पता था। हम दोस्ती में भी इंतहा करते हैं, दुश्मनी में भी इंतहा करते हैं। ये मुल्क किसी के बाप का है? पीटीडीसी किसी के बाप की मलकियत है? पीटीडीसी पाकिस्तान का इदारा है। मैं पाकिस्तानी, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ। जब तक मुझे मौका मिला इस मुल्क के लिए अपने हिस्से की शमा रोशन करूंगा मैं। मैं एक गल दसा, लगदी नालों टुटदी चंगी बेकदरां दी यारी, चंगा होया लड़ नेड़ियों छुटिया, उम्र नहीं गुजरी सारी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ऐलान कर दिया। चौधरी अब्दुल गफूर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नून लीग छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इदारों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान शरीफ खानदान की मिल्कियत नहीं है। उन्होंने कहा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैंने नॉमिनेशन पेपर ही जमा नहीं करवाए। उन्होंने कहा कि कल शहबाज शरीफ के खिलाफ जलसा करके आया हूं, टिकट मेरा मसला नहीं है, जात से निकलकर पाकिस्तान और इस्लाम के लिए निकला हूं। कभी मोदी को बुलाया जाता है और कभी नामूस रिसालत के कानून में तब्दीली की जाती है। मजीद ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बरादरी मेरे साथ खड़ी है, पाकिस्तान के इदारों को कमजोर नहीं होने दूंगा। चौधरी अब्दुल गफूर मेयो ने नून लीग छोड़ने का ऐलान कर दिया, अलम बगावत बुलंद कर दिया है चौधरी अब्दुल गफूर मेयो ने। उन्होंने कहा कि टिकट्स की खरीदो फरोख्त का इल्जाम भी लगाया है उनकी जानिब से। इस वक्त आपको बताएं कि पाकिस्तान शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और शरीफ खानदान के किसी और शख्स की मिल्कियत नहीं है।